So hello everyone, welcome to Ask Geology. Okay, this is a whole new way to understand our Mother Earth, and this is going to, like, we are going to start. This is actually a combined topic. Okay, where we'll see that economic geology and ore geology. Okay, that will be cross referenced with the stratigraphy. Okay, stratigraphy means the rock succession in different, and we will be restrict our studies up to our India. Okay, but we will be seeing the implications or the within the time scale, geological time scale, what are the various events that occurred. Okay, and the events which are responsible for the deposition of economic deposits. Okay, in a rough idea with world perspective, and we will restrict our studies up to the Indian subcontinent. Okay, and Indian cratons, mobile belts, whatever they are present. Okay, in different cratons and mobile belts, we'll see individual stratigraphy, we'll see the rock succession. Okay, what are the rock formations, and we'll see that the rock formation or the successions, they host the economic deposits. Okay, and always we will be correlating these things with the stratigraphy, sorry, time scale, geological time scale. At what time scale, okay, this particular event happened, and this particular event that caused the deposition of these economic deposits. Okay, okay guys, so this is so we are going to discuss first the ore geology concept. Okay, first the ore geology. Okay, then second your economic deposits. Third, the stratigraphy. Okay, third, the stratigraphy. And I will be just telling in the stratigraphy part, okay, what are the rock formations. Okay, and in these rock formations we will be like considering particular, okay, particular and characteristics rock formations, like whether it is, if it is igneous or if it is metamorphic. Okay, different metamorphic or igneous types of rocks, different types of rocks we'll be discussing. Okay, so and all these like the ore deposits or the stratigraphic succession, different stratigraphic successions, we will always be correlating those things to the geological time scale, so that it will help us to correlate various things. Like if you just read the paleontology. Okay, paleontology, like in the Cambrian period, what are the like life present at that time. Okay, then when these animals came. Okay, like the your dinosaurs came, reptiles came, age of fishes, amphibians. Okay, and evolutionary trends of different life forms. Okay, so that we will be able to correlate at this particular time. Okay, this might be the cause for the extension of these life forms. Okay, in we'll see that the carboniferous. Okay, carboniferous, that was the time which was responsible for the huge coal deposit. Okay, and at that time, why this huge coal deposit is present everywhere, like we can see in Antarctica, Australia, India. Okay, and in this side the Madagascar and the Africa part. Okay, we'll see the coal deposits, and those are restricted to those your carboniferous time. Okay, carboniferous time. So carboniferous to Permian, carboniferous to Permian, we will see that the even the properties, physical and chemical properties of the coals, okay, in the Indian coal and the Australian coals, like very similar. Okay, and we'll try to correlate what might be the controlling factor for the formation of these huge coal deposits all around the world. Okay, तो वहाँ पे एक टाइम कार्बोनिफेरस मतलब इट विल गेट सम पर्टिकुलर टाइम, मे बी 270 और 300 टू 360 मिलियन ईयर, मे बी 300 टू 360 मिलियन ईयर, दिस इज द एज. तो इसमें व्हाट आर द केमिकल, व्हाट आर द एनवायरमेंटल कंडीशंस, उसमें एटमोस्फियर का कंडीशन क्या था. ओके, और व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ योर हाइड्रोस्फीयर, देन उसको हम कोरिलेट कर पाएंगे. ओके, वी विल बी सीइंग दैट इज 2.6 बिलियन ईयर. oh 2.6 or 2.5 billion year, that is the event of great oxidation event. Okay, great oxidation event. These are some examples I am just telling you, the great oxidation event and what this great oxidation event implies. Okay, and
due to this event, what are the changes? Okay, if we just see the BIF formation, okay, lake superior type and your banded iron formation, okay, this 2.5 that great oxidation event has a great role, okay, for which we are seeing the BIF, various types of BIF, okay, and how this, why this, and what this superior type BIF represents, okay, what is BIF, okay, and how this 2.5 event, that is the great oxidation event, that controlled or that influenced the life forms, okay. Great oxidation event ऐसे पता चल रहा है कि ऑक्सीजन का like amount might have been increased in a vast in a vast scale, okay. So अभी ऑक्सीजन था नहीं in the atmosphere, now oxygen is present in a very huge amount, तो उसका कुछ implications होगा with the life forms present at that time, okay. And we will be seeing 2.65 is considered as the rapid crustal building period, इसको बोलते हैं rapid crustal building time or rapid crustal building period, okay. At this time 2.65 this billion year, so your crustal building process was so rapid, okay. And in this series or in this module, okay, it will have so many of lectures. So in this economic geology we will be focusing only the important economic deposits, okay. Like if you just go to titanium and vanadium deposits, क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है वहाँ से, ओके, वेरी रेयर क्वेश्चंस, बट we will just see those things also, okay. We will see the nickel deposit, copper deposit is very important, okay. Copper deposits, now various types of like porphyry copper deposits, sedimentary hosted, okay. And we will see how this copper deposits is important. Then iron, the BIF formation, lake superior type, the rapid type formation, gold deposits is very important. Why this gold deposit is important? Because this is economical, like it has a very vast क्या बोलते हैं उसको, it has a vast contribution towards the economy of any country, okay. gold, देखते हो गोल्ड का अभी रेट कितना चल रहा है, 10 ग्राम like 56,000 मे बी दिस टाइम, isn't it? उसके बाद देखेंगे क्रोमियम डिपॉजिट, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, PZE. दिस PZE is platinum group element, okay, platinum group element. And in this lecture, okay, in the coming session I will be just taking one class where we will see or where we will study the periodic table, okay, the behavior of each and individual elements and their classification, how they are classified, the P block, SPDA block, okay. Then the hybridization concept, then the concept of this ion exchange, okay. What is that called? What is that called? That 5 rules, Pauling's rule, okay. Then lead zinc deposit, this is the important base metal deposit. Uranium, thorium, uranium deposits we will see in the in the Singhbom Yorjon, the first uranium mine that just got created or discovered by the UCIL, okay. uranium UCIL का full form पता है? UCIL, okay. This is one body that that is focused on only uranium. जिसका नाम है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. दिस इज यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, okay. This is present in Jharkhand, okay. And there are more this Mohuldi, Turamdi, Rakha mines, okay. There are so many of mines that come under this UCL, and this is prime producer of our uranium deposits in India, okay. UCL इसका ISO बहुत ज़्यादा है, ठीक है. तो UCL के बारे में थोड़ा देख लेना. And UCL also takes students, geology students, the preferred geology students. UCL, this is present in Jharkhand, okay. Jharkhand, UCL. And after that this fluorine, phosphorus, sulfur, these are some like fertilizers, the use of phosphorus, sulfur in fertilizers, phosphorites deposits, okay, in the Maldavta deposits, for Maldavta phosphorite, Masuri phosphorite deposits in this 2022 GSI, and they asked the Masuri phosphorite deposits, okay.
So we'll trying to just correlate these things. Then in the building rocks, okay, और द बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक ग्रेनाइट, मार्बल में यू देखना कि तुम्हारा रास मार्बल है, ठीक है, जो गुजरात इस साइड में बहुत ज़्यादा मिलता है, गुजरात राजस्थान मार्बल कहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, यू कैन सी इन द अरावलीज, ओके, इन द अरावलीज मार्बल इज बहुत ज़्यादा मिलता है, ओके। जाना कभी तुम, यहाँ पे ताजमहल बना हुआ है, व्हाट इज द रॉक विच वाज यूज्ड to construct this monument or this huge structure, and after that limestone, implications of limestone, mica very important, okay, mica belt, अभी तुम बिहार माइका बेल्ट देखो या फिर राजस्थान माइका बेल्ट देखो, ठीक है, नेल्लोर सिस्ट बेल्ट देखो, जहाँ पे यू विल गेट दिस माइका, देन asbestos, then barites, okay, which geophysical instrument or which geophysical method is used to detect barite deposits? That is your gravity method, okay, that is your gravity method. You all write down, gravity method is used to detect barites, okay, barites, because this barite has a very high specific gravity, okay, it has a very high g value. Then graphite is also very important, and we will see what is the difference between graphite and diamond, okay, the composition is same, okay, but their crystallinity or the crystal structure different. Talc and clays, this is talc or talc, whatever you pronounce, that is fine, and clay, we'll see various types of clay, okay. Then how this ये खत्म हो गया, okay, anyone do you have any kind of doubt, then you can ask me please. If anyone have any kind of doubt, then you can ask me, because this is only like what we are going to study, I have just described here, okay. हेलो, किसी का कहीं पे कुछ डाउट है? हाँ, बोल, ऐसे बोलना है, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, बताओ। अभी विंडो चेंज करेंगे, ऑडियो वीडियो आगे पीछे हो जाएगा। सो in this economic geology cross referred with stratigraphy, so let's see what is the definition of stratigraphy, okay. You can see the definition of stratigraphy. It is the branch of geology and the earth science that deals with the arrangement and succession of strata means these are rock strata, lithostrata, or layers, as well as the origin, composition, distribution of this geological strata. तो स्ट्रैटिग्राफी में हम देखेंगे बहुत सारा, अभी धरवार क्रैटन देखेंगे, ठीक है, अभी ईस्टर्न घाट मोबाइल वेल देखेंगे, उसके बाद डेकान भी देखेंगे, हर एक चीज़ देखेंगे, ओके। इन द स्ट्रैटिग्राफी वी विल सी ईच क्रैटन, मोबाइल बेल्ट्स associated with that, and even the Cenozoic, and with respect to different time period, okay, what are the various types of cratons and mobile belts that got created in the Precambrian or the Paleozoic, then Cenozoic, then Mesozoic, okay. We will see these in detail, okay. This is your stratigraphy. So how this stratigraphy will be correlated with this economic geology? Because within that time period, okay, in the Paleozoic or in the Precambrian time, I will say that BIF deposits were found like in the Indian subcontinent. अभी हम बोलेंगे कि हॉटी एंड कोलार गोल्डफील्ड, ओके, हॉटी एंड कोलार गोल्डफील्ड, एंड व्हाट इज द रेस्पेक्टिव एज, तो वहाँ पे क्यों गोल्ड मिलता है, ओके। अभी स्टार्ट एंड दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक डिपॉजिट्स, ठीक है। अभी गोल्ड मिलता है, दैट इज इकोनॉमिक डिपॉजिट्स। क्यों मिलता है, कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, देन वी विल सी दिट स्ट्रैटिग्राफी व्हिच क्रैटन और मोबाइल बेल्ट इट इज फाउंड, ओके। क्यों मिलता है, देन वी विल गो टू द ओरजेनेसिस प्रोसेस, ओके, दैट इज द ओरजेनेसिस प्रोसेस, कि वहाँ पर क्यों मिल रहा है, ओके, वहाँ पे क्यों मिल रहा है। अभी आई विल जस्ट सिंपली टेल, ओके, कि इस स्टेट में, ओके, इस स्टेट में ये ज़्यादा मिलता है। अभी मैं बोलूँगा कि भदोदरा पंचमहल में मैंगनीज मिलता है, ठीक है, अलवार बुंडी एरिया में आयरन मिलता है, रामपुरा आगुचा में लेड जिंक डिपॉजिट है, पूर्वबनेरा, ओके, भिलवारा सुपर ग्रुप में, भिलवारा डिस्ट्रिक्ट में, देरी सिरोही डिस्ट्रिक्ट में लेड जिंक मिलता है, जवार एरिया में लेड जिंक मिलता है, ओके। दीज आर योर इकोनॉमिक डिपॉजिट्स, okay, they will come under this economic geology part, okay. Now अभी मैं बोलूँगा कि they are deposited in the Aravali, okay, in the Aravali, then that will direct to stratigraphy. कौन सा रीजन में है,
नहीं वो अरावली में है, या फिर वो विंध्यान में है, या फिर वो बस्तर क्रैटन में है, ओके, या फिर वो गंगा प्लेन में है, ठीक है। दीज आर स्ट्रैटिग्राफी। एंड उनके बीच में एक छोटा सा कनेक्शन हम जोड़ेंगे, क्रॉस रेफरेंस करेंगे बाय द यूज ऑफ और जियोलॉजी। और जियोलॉजी इन द सेंस, और जियोलॉजी में हम क्या देखेंगे, व्हाट आर द प्रोसेसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिपोजिशन ऑफ दिस इकोनॉमिक डिपॉजिट्स इन दिस पर्टिकुलर साइट्स, ओके। क्रोमियम हम बताएंगे कि सुकिंदा में क्रोमाइट माइंस है, ठीक है, उड़ीसा में हमारा, काठपाड़ में हमारा वो कटक के पास जो है, तो वहाँ पे हमारा सैंडस्टोन मिलता है, ठीक है। सो देन वी विल जस्ट यूज द ओर फॉर्मिंग प्रोसेसेस, okay, that is a sub part of your ore deposits or ore geology, to just link these economic deposits with the stratigraphy and the processes, okay. And there are basically three or four processes, they basically many books they just tell, that is the igneous process, sedimentary, metamorphic and hydrothermal, okay. Igneous, sedimentary, metamorphic and hydrothermals. All of you know the definition of rock, okay. How do you define a rock? Ranjit, you just tell me, how do you define a rock? Rock is an aggregate of minerals. Yes, very good. Rock is an aggregate, this is aggregate of minerals, okay. And these minerals, how these minerals are formed? Minerals igneous process से ही फॉर्म हो सकता है, ठीक है। एंड मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री, इसमें मिनरल का रीडिस्ट्रीब्यूशन और सम अरेंजमेंट विद इन द मिनरल स्ट्रक्चर दैट एक्चुअली हैपेंस। इफ यू जस्ट ब्रॉडली यू जस्ट सी, तो मैग्मा एक होता है, ओके, यू नो द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा, ओके। मैग्मा से बेसिकली क्रिस्टलाइज होता है, एंड ड्यूरिंग दिस क्रिस्टलाइजेशन वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स दे गेट फॉर्म्ड, ओके, they get formed. And when these actually these are formed from magma, okay. magma से फॉर्म हो गया, देन these minerals, एंड इस मिनरल में कोई भी एक पर्टिकुलर मिनरल होगा जिसका इकोनॉमिक वैल्यू, ओके, which has a very high economic importance, or it has a very high contribution, economic contribution towards the economy of a particular region, देन उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये मिनरल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे कि गोल्ड है, डायमंड है, ओके। सो अभी देखते हैं कि ये जो मिनरल बन गया, देन दीज आर आवर प्रिफर्ड मिनरल्स, ये हमको चाहिए, ठीक है। एंड दिस फॉर ओर फॉर्मिंग प्रोसेस, तो ये देखो तुम्हारा इग्नियस भी हो सकता है, मेटामॉर्फिक हो सकता है, सेडिमेंटरी हो सकता है, देन दिस हाइड्रोथर्मल, दिस इज अनदर वन, ओके, हाइड्रोथर्मल भी हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि और बेसिकली जो और फॉर्मिंग प्रोसेस है वो बेसिकली होता क्या है, तो उसमें क्या क्या हम देखते हैं। एक मिनट, और फॉर्मिंग प्रोसेसेस में ओवरऑल जो ब्रॉड आइडिया है वो क्या है, ठीक है। इफ वी सी द और फॉर्मिंग प्रोसेस, यहाँ पे और के बारे में भी बताएंगे, ओके। आई एम जस्ट टेलिंग द प्रोसेस, और फॉर्मिंग प्रोसेस। स्ट्रैटिग्राफी भी कवर अप करेंगे, स्ट्रैटिग्राफी, इंडिविजुअल स्ट्रैटिग्राफी, ये होगा हमारा बेस, और इंडिविजुअल स्ट्रैटिग्राफी के बेसिस में हम देखेंगे व्हाट आर द इकोनॉमिक डिपॉजिट्स, ओके, इकोनॉमिक डिपॉजिट्स और द डिस्ट्रीब्यूशन, economic deposits distribution in different states, okay, in India, and we will be seeing some examples in the worldwide, ओके। तो इन तीनों को अभी हमें कोरिलेट करना है, तो बेसिकली हम देख लेते हैं दैट व्हाट ओर फॉर्मिंग प्रोसेस एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस ओर फॉर्मिंग प्रोसेसेस, ओके। पहले तो ओर फॉर्मिंग प्रोसेस करने के लिए, ओके, यू हैव टू नीड, ओके, और फॉर्मिंग प्रोसेसेस के लिए फर्स्ट यू नीड दैट इकोनॉमिक मिनरल, ठीक है। तो पहले क्या होगा, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, ये तुम्हारा रॉक्स है। रॉक्स के अंदर व्हाट आर दिस डेफिनेशन ऑफ रॉक, रॉक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स, एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स, एंड दीज मिनरल्स आर आवर ऑब्जेक्टिव्स, और ये हमें चाहिए अभी, ओके। तो अभी क्या होगा कि देन मिनरल्स, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, ओके। सो अभी हमको क्या करना होगा कि नाउ विथ सम प्रोसेस
maybe it may be your igneous metamorphic, whatever the process, we have to just extract those minerals from this rock. Okay, we have to extract these minerals from this rock. Okay, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, A है, B है, C है, D है. Okay, and we have to extract these A. Okay, and we have to क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके ए ही, इसमें सिर्फ ए ही है, ठीक है, ए मिनरल, देन इसको हम बोलेंगे वन इकोनॉमिक मिनरल डिपॉजिट. ओके, वहाँ पे तो देयर इज सम कॉन्सेप्ट ऑफ योर कट ऑफ ग्रेड एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स, वी विल सीइंग दीज थिंग्स लेटर. ओके, तो यहाँ पे ए बी सी डी सारा का सारा अगर मिलेगा, देन इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा कम है, देन ये तुम्हारा इकोनॉमिक डिपॉजिट नहीं होगा. ओके, अगर लेकिन तुम्हारा सिर्फ ए को तुम लाइक यू जस्ट ट्रांसपोर्टेड दिस ए एंड यू जस्ट डिपॉजिटेड इन ए डिफरेंट बेसिन और डिफरेंट साइट where and the concentration is very high enough, then this deposit will be considered as an ore deposit. okay, नहीं तो उसको ore deposit नहीं बोलेंगे. तो यहाँ पर ore forming processes के लिए हमें पहले क्या चाहिए, we have to first mobilize and scavenge. okay, mobilize and scavenge. तो इससे रॉक से हमें ईच एंड इंडिविजुअल मिनरल को हमें निकालना होगा. ओके, वी हैव टू टेक आउट दीज मिनरल्स एंड व्हाट आर द प्रोसेसेस, बहुत सारा प्रोसेस है, इग्नियस भी हो सकता है, हाइड्रोथर्मल हो सकता है, मेटामॉर्फिक हो सकता है, कुछ भी है. ओके, तो मोबिलाइज एंड स्कैवेंज, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ओके, उसके बाद क्या होगा, इसको यहाँ से ए बी या फिर पर्टिकुलर ईच एंड इंडिविजुअल मिनरल को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे. निकालने के बाद we need some transportation. Okay, you have to just take these minerals out, you have to transport it. Transportation, okay, transportation का various media भी है, वो तुम्हारा वाटर हो सकता है, ठीक है, एंड हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस हो सकते हैं. ओके, तुम्हारा ऊपर से पानी आ रहा है या फिर नीचे से पानी आ रहा है, ये तुम्हारा मेटामॉर्फिक फ्लूइड भी हो सकता है. ओके, नाउ दीज आर द ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स, AG agents. Okay, first you have to mobilize and scavenge, you have to take out these particular minerals from the rocks, then you have to transport them, and then you have to deposit somewhere. Okay, deposit somewhere in basins. Okay, somewhere basins or something like that. अभी तुम कहीं पर भी एक डिपोजिट करना होगा, ठीक है. Now after deposition, okay, and after deposition, if their concentration is high and if like the cost of production is less and you are getting economical viability, okay, if you are just able to just get economical viable, okay, these deposits to be economical viable, then इसको हम बोलेंगे ore deposit. okay, ore deposit, then finally यहाँ पर तुम्हारा economic और ore deposit आएगा. ठीक है, किसी का कहीं पर डाउट है? First you have to mobilize, then you have to transport, you have to deposit, and if the concentration is high enough, then we will just call it as a ore deposit. Okay, जल्दी बोलो यार, बहुत लंबा जाना है. ठीक है, और यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में जाते हैं. पहले ये तुम्हारा रॉक है, ठीक है. नाउ इफ दिस रॉक is containing some ore mineral, okay, if this rock is containing some ore mineral, then we will call it as a mineralized rock. Okay, mineralized rock. Now if this mineralized rock, it has concentration of your metals, okay, concentration of metal or any kind of minerals. okay, अगर तुम्हारा concentration of metal is greater than your concentration or the cut-off grade, okay, this cut-off grade क्या होता है, I will just tell you. okay, concentration of metal is greater than your cut-off grade, then we will call it as ore. okay, we will call it as ore. ठीक है. Now if the concentration of metal is greater than the cut-off grade, then we will call it as an ore.
ओके। देन उसके बाद और एक फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि और निकालने के बाद जस्ट हम पैसा चाहिए, ठीक है, पैसा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो और मिलने के बाद उसमें हम देखेंगे कि कितना टोनेज है। अभी दीज आर सम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू ओर जियोलॉजी, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। टोनेज ऑफ ओर, ठीक है, तुम्हारा टोटल वॉल्यूम ऑफ ओर कितना है, उसके बाद उसमें तुम्हारा मेटल कंटेंट कितना है, टोटल एम सी मीन्स मेटल कंटेंट। इफ दिस फैक्टर, this is the tonnage of ore divided by the total metal content, this is the total volume of the ore deposit, and this is only the metal content, okay, because क्या होता है कि रॉक के साथ मेटल के, एक पर्टिकुलर मेटल के साथ देयर आर सो मेनी ऑफ अदर वेस्ट, ओके। तो तुम्हारा टोटल वॉल्यूम ऑफ ओर कितना है एंड टोटल मेटल कंटेंट उसमें कितना है, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन योर प्रेस्क्राइब्ड लोअर लिमिट, दैट इज योर प्रेस्क्राइब्ड लोअर लिमिट, यहां पर तुम्हारा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आता है, ओके। नाउ प्रेस्क्राइब लोअर लिमिट मतलब इसके नीचे यू कैन नॉट बी एबल टू जस्ट एक्सट्रैक्ट, ओके, ए ओ मतलब कहीं से तुम माइन नहीं कर पाओगे, दैट इज दिस इज द प्रेस्क्राइब्ड लोअर लिमिट। इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन दिस ओर विल बी कॉल्ड एज योर ओर डिपॉजिट, ओके। समझ में आ गया? और डिपॉजिट उसको बोलेंगे। पहले तो फर्स्ट देयर आर सो मेनी ऑफ रॉक्स, रॉक के अंदर एक और मिनरल होना चाहिए, देन उसको हम मिनरलाइज्ड रॉक बोलेंगे। मिनरलाइज्ड रॉक में उसका जो कट ऑफ ग्रेड है, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल, उसमें एक मेटल होगा, उसका मेटल का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा कट ऑफ ग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए, देन विल कॉल इट एज ए ओर, ठीक है। उसके बाद और एक फैक्टर हम बताए हैं, व्हाट दैट इज द टोनेज ऑफ योर ओर divided by the total metal content, this factor should be greater than or equal to the prescribed lower limit, okay। उसके बाद prescribed lower limit से if this condition is satisfied then we will call that ore to be an ore deposit, okay। cut off grade क्या होता है, सब लिख लो, write down what is cut off grade, this is cut off grade। cut off grade क्या होता है, दिस इज द लोअर लिमिट, ओके। कट ऑफ ग्रेड मतलब उससे नीचे तुम नहीं, मतलब कट ऑफ ग्रेड उसके नीचे, दैट इज द लोअर बाउंड्री, ओके। उसके नीचे अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन उससे कम है देन यू विल नॉट बी एबल टू जस्ट एक्सप्लोर, तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल, तो नहीं करना चाहिए, दैट इज द कट ऑफ ग्रेड, ओके। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस कट ऑफ ग्रेड, दिस इज एक्चुअली डायनामिक इन नेचर, ओके, डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज अभी देखो तुम्हारा जैसे कि एक रॉक के अंदर कोई भी मिनरलाइजेशन है, देन दैट मिनरलाइजेशन इज नॉट होमोजेनियस थ्रू आउट द रॉक, ओके। सो कभी क्या करने, देन उसमें तुम ब्लेंडिंग करना पड़ता है, ओके। व्हेन यू जस्ट कैलकुलेट द कट ऑफ ग्रेड यू हैव टू ब्लेंड, ओके। ब्लेंडिंग, तुम्हारा लो ग्रेड ओर है, हाई ग्रेड ओर है, देन यू हैव टू ब्लेंड एंड यू हैव टू मेक ए ब्लेंडेड ओर which must have a greater value than the cut off grade, okay। किसका कहीं पे डाउट है तो पूछो गाइज। और जियोलॉजी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी देखते हैं इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंटरी। इग्नियस प्रोसेस है, इग्नियस रॉक फॉर्मिंग प्रोसेस, ओर फॉर्मिंग प्रोसेस, सेडिमेंट्री ओर फॉर्मिंग प्रोसेस, मेटामॉर्फिक ओर फॉर्मिंग प्रोसेस, देन हाइड्रोथर्मल। हाइड्रोथर्मल ओर फॉर्मिंग प्रोसेस में हम देखेंगे ये लाइक योर फ्लूइड्स, okay, how these fluids are playing a great role in forming ore deposits, okay। And here this diagram, you all be able to see this diagram, यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे क्रैटॉन्स एंड मोबाइल बेल्ट्स हैं जहाँ पर विल जस्ट कंसिडर द स्ट्रैटिग्राफी, ओके। यहाँ पर देखो ये तुम्हारा वेस्टर्न दरबार है, ये तुम्हारा ईस्टर्न दरबार है, ठीक है। नाउ दिस लोअर वन, दिस इज द पांडियन मोबाइल बेल्ट, एंड दिस 13 यू कैन सी व्हाट इज दिस 13, ये सिस्ट बेल्ट होगा, नेल्लोर सिस्ट बेल्ट। 13 क्या है, यू कैन सी 13 क्या है, 13 इज योर नेल्लोर बेल्ट, यू कैन सी नेल्लोर बेल्ट, नेल्लोर सिस्ट बेल्ट, ठीक है। यहाँ पर तुम मैंगनीज डिपॉजिट मिलेगा हमको, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 14 दिस इज योर ईस्टर्न घाट, एंड दिस इज योर कड़ाप्पा बेसिन,
ओके, दिस 20 कडप्पा, कालादगी, भीमा, ठीक है, भीमा कालादगी। अभी जो तुम्हारा यूपीएससी का एक एग्जाम हुआ था उसमें तुम्हारा एक क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू दिस कालादगी बेसिन। ओके, भीमा कालादगी हो गया। दीज आर इंट्राक्रैटोनिक बेसिन्स। इंटरक्रैटोनिक एंड इंट्राक्रैटोनिक डिफरेंस है। इंटरक्रैटोनिक, इंटरक्रैटोनिक एंड इंट्राक्रैटोनिक, इंट्राक्रैटोनिक डिफरेंस क्या है? जैसे मैच होता है क्रिकेट मैच, इंटर कॉलेज मैच, इंट्रा कॉलेज मैच। इंटर कॉलेज मैच में क्या होता है, ये एक कॉलेज है, ये एक कॉलेज है, ये एक कॉलेज है, इन तीनों के बीच में जो मैच होगा दैट इज योर इंटर कॉलेज मैच। ओके, इंटर कॉलेज मैच। इंट्रा कॉलेज क्या होता है, एक ही कॉलेज में अभी बहुत सारा डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में है, तो इन डिपार्टमेंट के बीच में जो मैचेस होंगे देन उसको बोलेंगे हम इंट्रा कॉलेज मैच। ओके, इंटर कॉलेज एंड इंट्रा कॉलेज सेम थिंग। इंटरक्रैटोनिक बेसिन्स, इंट्राक्रैटोनिक बेसिन्स। इंट्राक्रैटोनिक बेसिन्स बेसिन के अंदर ही होगा, ठीक है। इंट्रा, ये एक मतलब यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा धरवार है या फिर ये तुम्हारा टोटल ये लेट, ये पूरा तुम्हारा धरवार है, धरवार क्रैटन। एंड नाउ दिस धरवार क्रैटन इज कंटेनिंग दिस भीमा बेसिन, कालादगी बेसिन, कोडाप्पा बेसिन एंड नेल्लोर सिस्ट बेल्ट इज ऑल्सो इज प्रेजेंट देयर। ओके, तो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरक्रैटोनिक एंड इंट्राक्रैटोनिक। ओके, and these are various types of all the Purana basins or your Proterozoic mobile belt or your cratons. Okay, and these are included in the stratigraphy part. Okay, stratigraphy part. In stratigraphy part we will see, ठीक है। अभी यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ तुम्हारा हॉटी है, कोलार है, इस कोलार के ऊपर तुम्हारा फिल्म बनाया हुआ है केजीएफ, इसका फुल फॉर्म कोलार गोल्ड फील्ड है, केजीएफ। यस जो मूवी, यस जो हीरो है, केजीएफ 2 आ गया, अभी केजीएफ चैप्टर 3 आएगा, ठीक है। तो ये जो केजीएफ है दिस इज कोलार गोल्ड फील्ड, एंड कोलार गोल्ड फील्ड अभी बंद है। ओके, यहाँ पर माइनिंग अभी नहीं चल रहा है, माइनिंग हैज क्लोज्ड, खत्म हो गया है यहाँ पे। ओके, नाउ दिस इज क्लोज्ड। हट्टी अभी भी चल रहा है, हट्टी अभी भी चल रहा है। विल सी दैट what are the factors or what are the ore forming processes responsible for the deposition of hotty and kolar golds। okay, ये तुम्हारा हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट, मेटामॉर्फिक हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स, दिस हॉटी एंड कोलार। ओके, and there are other some basins like Bastar basins, Pranhita Godavari, KG basin, Bhima Kaladgi, Kadappa, Marwar basin, मेवार बेसिन, ओके, बिंध्यान बेसिन, ठीक है। ईस्टर्न घाट मोबाइल बेल्ट, सातपुरा मोबाइल बेल्ट, दिल्ली फोल्ड बेल्ट, राजस्थान में देखेंगे सोसर ग्रुप, महाकोसोल बेल्ट, ठीक है, सिंघभूम क्रैटन, बुंदेलखंड, राजस्थान, ईस्टर्न दरबार, वेस्टर्न दरबार, एंड दिस इज ऑन डिफरेंशिएटेड फेनेरोजोइक कवर। यहाँ पे तुम्हारा डेकान ट्रैप भी बहुत ज़्यादा है डेकान ट्रैप, ठीक है। डेकान ट्रैप को यहाँ वो दिखाया नहीं है, यू कैन सी दिस 15। ओके, दिस 15 इज कहाँ गया 15, दिस इज सातपुरा बेल्ट, सातपुरा मोबाइल बेल्ट भी देखेंगे, ठीक है। 4 पे क्या है, 4 पे तुम्हारा सिंघभूम, यहाँ पे तुम्हारा सिंघभूम क्रैटन देखेंगे, ठीक है, ये तुम्हारा सिंघभूम है। तो सिंघभूम में अभी जो बताया था यूसीआईएल झारखंड जो है, ठीक है, वो सिंघभूम श्योर जोन में आता है, एंड सिंघभूम श्योर जोन इज ए पॉलीमेटालिक मिनरल डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारा क्रैटन, एंड यू विल बी सीइंग दैट मेजर इकोनॉमिक डिपॉजिट्स, ओके, मेजर इकोनॉमिक डिपॉजिट्स वर डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द पीसीसी, प्री कैम्ब्रियन टाइम। मैक्सिमम डिपॉजिट तुम देखोगे प्री कैम्ब्रियन टाइम में हुआ था। अभी जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल या फिर नेचुरल गैस या फिर एनी इकोनॉमिक डिपॉजिट्स, ऑल द इकोनॉमिक लाइक आयरन, क्रोमाइट, व्हाटएवर, दीज आर नॉन रीन्यूएबल। इसको हम फिर से रीन्यू नहीं कर पाते हैं, रीन्यू नहीं कर पाएंगे। रीन्यू क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज इनका जो फॉर्मेशन का जो टाइम था एंड इनका ड्यूरेशन, द ड्यूरेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस इकोनॉमिक डिपॉजिट्स, दे टेक ए वेरी 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 लॉन्ग टाइम,
ओके, एंड वो इतना लंबा है, इन मिलियंस ऑफ ईयर्स दे हैव टेकन to form these economic deposits. So it is practically impossible, okay, it is practically impossible to wait such 300 million years to get this iron, chromite and whatever the other deposits. That's why they are called non renewable. Oil and natural gas we cannot. That's why so many unconventional like the solar energy, wind energy, they are being used, very popularly used. Okay, सोलर चार्जर तुम देखे हो, जो तुम सोलर पैनल लगा लेते हैं, दे यूज द सन एनर्जी. ओके, इन हिली टेरेन यू विल बी सीइंग सम पानी के लिए जो यूज़ करते हैं कुछ लगा लेते हैं, देन सो मच ऑफ ड्यू मॉइस्चर जो भी है, तो वहाँ पे आके हम पानी के लिए जो यूज़ करते हैं कुछ लगा लेते हैं, देन सो मच ऑफ ड्यू मॉइस्चर जो भी है, तो वहाँ पे आके दे जस्ट गेट दैट फ्रेश वाटर. ओके, and these are the ore forming processes. Broadly 4 types. In the Robb book you will be seeing that is given broadly 3 types, and this hydrothermal they have just included into sedimentary hydrothermal. Okay, igneous, sedimentary, metamorphic, and hydrothermal in a different I have categorized to a different part. Okay, 4 types: igneous, sedimentary, metamorphic. And we will see that in the igneous part what are the like major minerals, like your major elemental group like chromium, vanadium, titanium. these are अभी तुम igneous से मिलेगा. सेडिमेंट्री में BIF मिलेगा, बैंडेड आयरन फॉर्मेशन मिलेगा, मैंगनीज कुछ कुछ, मैंगनीज तुम्हारा मेटामॉर्फिक में मैंगनीज आएगा, ग्राफाइट आएगा. ठीक है, इग्नियस में तुम्हारा माइका भी आ सकता है, हाइड्रोथर्मल में तुम्हारा गोल्ड आएगा. ठीक है, हाइड्रोथर्मल में गोल्ड, एंड हाइड्रोथर्मल में यहाँ पर हाइड्रोथर्मल में प्लासर डिपॉजिट्स भी हम इंक्लूड कर लेंगे. प्लासर डिपॉजिट्स, प्लासर दे विल बी कंसिडर्ड इन सेडिमेंटरी. ओके, गोल्ड डिपॉजिट, प्लासर गोल्ड, प्लासर प्लैटिनम. एंड इन दिस लेफ्ट साइड डायग्राम यू कैन सी, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पर बहुत सारे क्या है, पहाड़ है. ठीक है, पहाड़ मीन्स माउंटेन्स. काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जंस्कर रेंज, पीर पंजल. ठीक है, नागटिप्पा. नागटिप्पा इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल साइट. ओके, वहाँ पे ट्रैकिंग पे जा सकते हो तुम. शिवालिक है, नेपाल हिमालय है, ईस्टर्न अरुणाचल हिमालय है. नाउ यू कैन सी हिमालय इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट. ओके, दिस. ओके, सो इंग्लिश में उसको इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, THE, द हिमालयस. HIMALAYAS, द हिमालयस. This is not the Himalaya. Okay, that is the Himalayas. Why these Himalayas? Because there are so many peaks, so many of ranges present within that Himalaya. That's why it is Himalayas. Okay, this Aravalli range, Bareil range, Mikir hill, Jointia, ये गारो खासी मिजो, ये जितना भी है, बरेल सीरीज. ओके, मिकिर हिल्स, जोइंटिया, खासी, गारो, मिजो. ओके, मणिपुर हिल, मिसमी हिल, अरुणाचल हिल, ये तुम्हारा दे आर ऑल रेस्ट्रिक्टेड टू दिस ईस्टर्न पार्ट. ओके, ईस्टर्न पार्ट. यहाँ पे तुम्हारा देखना बरेल, तिप्पम सीरीज, वहाँ पे लाइक ONGC का बहुत सारा प्रोजेक्ट्स हैं. ठीक है, वहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन चलता है. दैट इज बरेल, तिप्पम इज द एज ऑफ मायोसिन. ओके, दैट इज द रिजर्वर रॉक. गारो खासी में बहुत सारा तुम मेटामॉर्फिक डिपॉजिट्स भी देख सकते हो. यहाँ पर जैसे कि तुम्हारा इन मेघालय देयर इज डोमियासैट यूरेनियम डिपॉजिट्स, डोमियासैट सैंडस्टोन होस्टेड यूरेनियम डिपॉजिट्स. ओके, it has a very high grade. Okay, now I just tell you one thing, the related to the cutoff grade in the UCIL, in the Turamdi mines. Okay, in the UCIL Jaduguda mines, that is the first mine where this uranium exploration that started. Okay, in India. Okay, then after that this Mohuldi, Turamdi, Rakha mines, those are various other types of mines which are which just come under the UCIL. Okay, वहाँ पे क्या, वहाँ पे ग्रेड कितना है पता है? The cutoff grade is 0.001. That is 0.001. Now you just imagine that if they are getting 0.001 cutoff grade, then that is also economical viable. So you just imagine how like its importance. You can just sense the importance of this uranium. Okay, and that
if you just imagine, like if you just correlate the energy produced from uranium and coal, that is like 1,000 times. I don't remember the particular number, but that is 1,000 times. If 1 kg of uranium may just give the energy, where some tons or some thousands of tons of coals burning, they will just give that the same amount of energy. Okay. And there are so many of other hills: पीर पंजल, जंस्कर, लद्दाख, पीर पंजल रेंज, नाग टिप्पा, शिवालिक, ये सब इसके ऊपर है। यहाँ पर सब ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस साइड तुम देख सकते हो इन दिस लेफ्ट से, यहाँ पर देखो आबू हिल, दिस माउंट आबू हिल, दैट इज इन द अरावलीज, राजस्थान में हम देखेंगे। विंध्यन रेंज, ओके, सातपुरा रेंज, सातपुरा सातपुरा यहाँ पर है। उसके बाद तुम्हारा ये कुछ कुछ है जो है, रामगढ़ है, राजमहल है, ओके, राजमहल ट्राप जैसे है, अजंता रेंज है, ठीक है। देन और क्या है, नीलगिरी हिल है। देन ये पलका कोंडा ऐसा कुछ है। देन एर्रामला रेंज है। एर्रामला मतलब ये सब हमारा इस साइड होगा शायद, ठीक है। 41, दिस इज द 41, दिस इज 41, यू कैन सी there are so many, and you can see the continuity of the hill ranges. And why I am just telling these hill ranges, because these are also good site for economic deposits, metamorphic economic deposits. Okay, you can see the continuity of hills. यहाँ पर देखो पूरा नॉर्थ में पूरा बाउंड्री, पूरा like it is much more continuous in this part. Here this is also much more continuous at a small part in the Rajasthan, okay, Rajasthan and Gujarat. And in the Western Ghat and in the Eastern Ghat, you can see this Eastern Ghat is not very continuous, but hill ranges are present and they have given different names. Okay, I'll be showing some photographs in the next class in the for the Western Ghats and Eastern Ghat, and you can see this Western Ghat is much more continuous than the Eastern Ghats. Okay, and these mountains, they also control the geomorphology or the your landscape. Okay, लैंडस्केप मोर्फोलॉजी बहुत ये दे कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, मैंगनीज मिलता है। अभी देखेंगे राजस्थान एंड कर्नाटक, इस साइड में बहुत सारा इकोनॉमिक डिपॉजिट्स है, तो उसको हम धीरे धीरे देखेंगे। पहले तो हम देख लेंगे कि ईच एंड इंडिविजुअल स्ट्रैटिग्राफी में कौन कौन सा क्रैटन में क्या क्या कौन कौन सा स्टेट आता है और कौन कौन सा स्टेट में, देन विल गो टू इकोनॉमिक डिपॉजिट्स। एंड आफ्टर दैट ईच एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक डिपॉजिट के बारे में हम देखेंगे कि ये जो इकोनॉमिक डिपॉजिट है, व्हाई दिस इकोनॉमिक डिपॉजिट इज देयर, or which of the ore forming process is responsible for the deposition of this economic deposit in this particular state or area or cratons. So यहाँ पर हम देखेंगे तो मेटल्स बहुत सारे हैं। प्रेशियस मेटल में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आ जाता है। फेरोस एंड अलाइड मिनरल्स में आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम, वैनेडियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, निकेल, कोबाल्ट, टिटेनियम है। नॉन फेरोस में कॉपर, लेड, जिंक, टिन, एंटीमनी, बिस्मथ है। ये कॉपर, लेड, जिंक है ना, कॉपर, लेड, जिंक, दीज आर बेस मेटल डिपॉजिट्स, बेस मेटल deposits. And for the base metal deposition, we will see in a global scale. Okay, copper deposits, that it can happen in the porphyry copper deposits, porphyry type deposits, and your sediment hosted, ACD, SEDEX, sediment hosted and sedimentary exhalative, ये सब हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ ओर फॉर्मिंग प्रोसेसेस में। रेडियो एक्टिव में यूरानियम, थोरियम है। लाइट मेटल में लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम। रेयर मेटल में टैंटलम, कोलंबियम, कैडमियम, मर्क्यूरी, पैलेडियम, REE। REE वेरी इज इंपॉर्टेंट। REE का मतलब क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट। ओके, अभी हम इसको जब पढ़ेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट, अब पीरियोडिक टेबल का एक क्लास हम लेंगे जिसमें 2-3 लेक्चर रहेगा। ओके, सो वहाँ पर हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल, अभी जियोलॉजिस्ट का पीरियोडिक टेबल कैसा है, एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स व्हिच आर वेरी मच लाइक ए जियोलॉजिस्ट शुड फोकस। ओके, जैसे कि REE क्या है, PGE मिनरलाइजेशन, कौन कौन सा एलिमेंट्स PGE में आते हैं। ओके, REE कैसे, मतलब हाउ यू विल डिफाइन दिस PGE एंड हाउ यू विल डिफरेंशिएट द REE। देन REE में हम देखेंगे LREE लाइट, देन MREE मिड REE बोलते हैं कहीं कहीं, देन HREE हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट। ओके, देन मिनरल फ्यूल में ऑयल एंड नेचुरल गैस, कोल एंड लिग्नाइट देखेंगे। कोल में बेसिकली हमारा कोल का जो तुम इफ यू जस्ट सी द ग्रेड, ओके, सी द ग्रेड मीन्स द इवोल्यूशन, वेरियस टाइप्स ऑफ लाइक स्टेजेस। देन कोल फॉर्मेशन के लिए पीट होता है, पीट, लिग्नाइट,
bituminous and anthracite. ओके एंड anthracite, दिस इज हाई रैंक कोल. anthracite यहाँ पे पीट सबसे लो रैंक कोल है. बेसिकली ये पीट को कोल ही नहीं समझते हैं. ओके, दिस पीट, दिस इज जस्ट लिथिफाइड दैट पार्ट. ओके, देन पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, anthracite, दिस इज PLBA. ओके, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, anthracite. हमारे जो इंडिया में जितना भी मिलता है, ओके, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, दीज आर एक्चुअली डिजायर्ड कोल्स. ओके, anthracite में क्या होता है कि इसका रैंक बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और द कार्बन परसेंटेज दैट इंक्रीजेस अबव 90%. ओके, दे आर नॉट गुड बर्निंग कोल्स. ओके, गुड, नॉट गुड कुकिंग कोल्स. देयर इज डिफरेंस बिटवीन कुकिंग कोल, कुकिंग एंड केकिंग. ओके, कुकिंग केकिंग डिफरेंट टू टर्मिनोलॉजीज. ओके, एंड इन हमारे जो इंडिया में जितना भी मिलता है हमारा कोल, दोज आर बिटुमिनस टू सब बिटुमिनस. हमारा इंडियन कोल्स जो है, इंडियन कोल्स, वो बेसिकली बिटुमिनस टू सब बिटुमिनस है. सब बिटुमिनस है. बिटुमिनस टू सब बिटुमिनस इन द लाइक द कोल डिपोजिट्स. अभी हम देखेंगे जब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो झरिया, ठीक है, झरिया, रानीगंज, अभी हमारा तालचेर में है. तालचेर में मेरा फील्ड था, तो इसमें तालचेर में जितना भी कोल तुम देखोगे, इवन यू जस्ट गो टू द दैट सीम नंबर 1 दैट इज द अंडरग्राउंड कोल माइनिंग इज देयर. ओके, सो वहाँ पे देखोगे तो सारा का सारा ग्रेड वही सब बिटुमिनस में ही आता है. ठीक है, झरिया एंड रानीगंज से हमारा कुकिंग कोल मिलता है. ठीक है, फॉर दिस कुकिंग कोल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर स्टील प्रोडक्शन. ओके, टाटा लेता है. तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो जितना इंडियन कोल्स है वो सब बिटुमिनस टू सब बिटुमिनस रेंज में आता है. ओके, एंड इंडियन कोल में सबसे एक सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है. सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है. ठीक है, सल्फर कंटेंट, क्योंकि ये हम कभी देखें गेट के क्वेश्चन में आया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग. ओके, देन इंडस्ट्रियल मिनरल में माइका इज इंपॉर्टेंट. माइका, एस्बेस्टस, बाराइट, and we just use gravity for detection of barytes. Talc, substone, benitote, vermiculite. Then building stone में granite, marble, limestone, quartzite, slate, cement, clay, sand, lime. gemstone में gemstone, diamond. ओके, मेटालर्जिकल रिफ्रैक्टरी मिनरल्स में तुम्हारा फायर, क्ले, ग्राफाइट, डोलोमाइट, सिल्वनाइट, डायस्पोर्ट, पैराफिलाइट, जिरकॉन, ये सब मिनरल्स. ओके, रिफ्रैक्टरी मिनरल्स. इतना सारा हमें पढ़ना नहीं है, इसमें जितना भी जो इंपॉर्टेंट है उसी को ही हम पढ़ेंगे. ओके, जहाँ से क्वेश्चन आता है. देन अब्रेसिव मिनरल्स में हाई ग्रेड नेचुरल अब्रेसिव, इंडस्ट्रियल डायमंड, करुंडम, एमरी, गार्नेट. ये अब्रेसिव मिनरल्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे देता है. देन सिलिशियस अब्रेसिव में क्वार्ट्ज, डायमंडाइट, ट्राइजोलाइट, सैंडस्टोन. सॉफ्ट अब्रेसिव में फेल्डस्पार, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, क्ले, लाइमस्टोन, चॉक, फुलर्स अर्थ. ओके, देन टॉल्क. देन सेरामिक में क्ले, फेल्डस्पार, उलास्टोनाइट. ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में सिलिका सैंड दैट इज द कंपोजिशन SiO2. ओके, दैट इज द टेक्टोसिलिकेट. द सिलिकॉन ऑक्सीजन रेशियो इज 1:2. ठीक है. देन फर्टिलाइजर्स में फॉस्फेट, पोटास, नाइट्रेट, लाइम, जिप्सम. फॉस्फेट इज इंपॉर्टेंट, पोटास इज इंपॉर्टेंट. ओके, इन दोनों को हम पढ़ेंगे. एंड जिप्सम डिपॉजिट, जिप्सम इसके बारे में हम देखेंगे. जिप्सम डिपॉजिट इन दिस हिमालयन रीजन. ठीक है, द हिमालय रीजन में जिप्सम डिपॉजिट हम देखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछ लेते हैं. ठीक है. एंड केमिकल मिनरल्स में रॉक सॉल्ट, बोराक्स, फ्लोराइट, पायराइट, वट एवर. पायराइट इज कॉल्ड फुलर्स गोल्ड, दैट इज कॉल्ड फुल अर्ट्स गोल्ड. मतलब जो गधो, ये फूल नॉट गधा, फूल मीन्स जो फूल का मतलब समझते हो, अप्रैल फूल जो बनाते हैं वही वाला फुलर्स गोल्ड. ठीक है, ये गोल्ड जैसा दिखता है बट दैट इज नॉट गोल्ड, दैट इज कॉल्ड फुलर्स गोल्ड, पायराइट. ओके, and if you just get a chance to go to UCIL, you will be seeing this pyrite in a very huge amount. Pyrite, chalcopyrite. Okay, and mineral pigment, ochre, and mineral water and groundwater, that is some like geysers type things. Okay, hot springs. Okay, in this Himalayan context there are so many of hot springs present. Okay, in the central India there are also hot spring. In Odisha there are also presence of this hot spring also is there. Okay, so ये इतना चीज हमको पढ़ना है. ठीक है, अभी इस, हाँ बताओ. ओके, हॉट स्प्रिंग क्यों प्रेजेंट होता है? जब भी देखो, जब तुम्हारा, इफ यू आर जस्ट गेटिंग, ओके, दैट वाटर
that water gets more amount of temperature or it is heated by some any kind of factors. Okay, just the thing is that the water is getting heated. ओके तो वो क्या करता है कि नाउ इट इज हीट हो जाता है, नाउ इट इज इजियर, इसका जो डेंसिटी कम हो जाता है, नाउ इट जस्ट कम आउट, ठीक है, प्रेशर रिलीज हो जाता है तो ये ऊपर आ जाता है, देन दिस इज कॉल्ड योर हॉट स्प्रिंग. एंड वी विल सी व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस हॉट स्प्रिंग्स. ओके, वहाँ पे कोई नीचे तुम्हारा मैग्नेटिक बॉडी हो गया, ठीक है, या फिर मेटामॉर्फिक तुम्हारा मेटामॉर्फिक फ्लूइड बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर कहीं से मिल गया, देन दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर हॉट स्प्रिंग्स. ओके, हिमालय में बहुत सारा हॉट स्प्रिंग क्यों है? यहाँ पर देखो मेटामॉर्फिज्म जब होता है या फिर थ्रस्टिंग जब होता है, देन ड्यू टू दिस स्लाइडिंग और ड्यू टू द फ्रिक्शन देयर सो मच ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, एंड दैट हीट कहीं पर अगर तुम्हारा एक वाटर बॉडी है या फिर नीचे एक एक्विफर है जहाँ पर वाटर है, देन इट कैन जस्ट हीट दैट वाटर टू ए ग्रेट एक्सटेंट. ओके, देन टेम्परेचर इज अबव दिस 60, 70, 80, 90, 100 के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है. तो क्या होता है कि वहाँ पे तुम्हारा गैस भी मिलता है. एंड इफ दिस वाटर, वट एवर द वाटर इज प्रेजेंट, नाउ दिस वाटर इज प्रेजेंट इन एक्विफर. ओके, एंड द एक्विफर शुड हैव सम कंपोजिशन. अभी उसके पास सल्फर ज़्यादा है कि नाइट्रोजन ज़्यादा है कि और कौन सा एक गैस ज़्यादा है, ठीक है. तो उसमें क्या करेंगे कि नाउ इट विल जस्ट मेल्ट और इट विल डिजॉल्व. तो वहाँ पे क्या क्या होता है कि अभी देखो बहुत सारे हॉट स्प्रिंग से बहुत सारे धुआं या फिर गैसेस निकलते हैं. ओके, गैसेस निकलते हैं, मे बी CH4 हो सकता है या फिर तुम्हारा सल्फर हो सकता है, ठीक है. एंड दोज गैसेस आर ओनली ड्यू टू दिस द एक्यूफर प्रॉपर्टीज. ओके, या फिर कंट्री रॉक, साइड में जो भी रॉक है, ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन द हॉट वाटर विद द कंट्री रॉक, दोज दिस प्रोड्यूस दोज गैसेस. ओके, तो ये सब हो गया तुम्हारा हॉट स्प्रिंग. हॉट स्प्रिंग कभी देखोगे, कभी तुम जाओ अभी हिमालय के आसपास जाओ, वहाँ बहुत सारे हैं, ठीक है. आई विल जस्ट टेक वन लिस्ट ऑफ देम, देन आई विल जस्ट शो यू. ओके, इतना सारा डिपॉजिट्स है, देख लिए सब. किसी का कहीं पर कुछ डाउट है? इतना सब पढ़ना है, अभी डरना नहीं है, पढ़ना है सबको, ठीक है. तो ओके, कुकिंग और केकिंग में सर डिफरेंस में बताएं. इसको हम डिटेल में जब हम पढ़ेंगे ना तब हम तुमको बता देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है. देखो बहुत सारे कोल्स हैं जिसमें उनका बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि वो आइदर वो अच्छे से बर्न करेंगे कि नहीं, ठीक है. अगर बर्न करेंगे तो कैसे बर्न करेंगे, वेदर इट इज़ कंप्लीट कम्बिशन और लिमिटेड कम्बिशन, ब्लू फ्लेम में जलेंगे या फिर येलो फ्लेम में जलेंगे, ठीक है. तो कुकिंग कोल, जो कुकिंग कोल है, ठीक है, तो दैट इज़ गुड फॉर दिस. कुकिंग कोल हमारा तालचेर से कुकिंग कोल नहीं मिलता है. ओके, तो कुकिंग कोल दैट इज़ गुड फॉर दिस स्टील प्रोडक्शन. ये टाटा बिरला जो लेते हैं ये स्टील प्रोडक्शन में उसको यूज़ करते हैं. तो उसमें देखेंगे व्हेन यू जस्ट बर्न इन द सेंस कम्ब्यूज, व्हेन यू जस्ट कम्ब्यूज ए कोल, एंड तो कोल का वेरियस स्टेजेस होता है, ठीक है. उसके बाद कोक क्या है, केक क्या होता है, ठीक है. उसके बाद टार क्या होता है, ये सब छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कोल है, हम बता देंगे. मेरा डिजर्टेशन कोल के ऊपर ही है. So if you just tell me, then I will tell a lot of things, because this sulfur content or the subbituminous type, the rank of these coals of these Talcher and Jharia, because I have done my field both in Talcher, Raniganj and Jharia. Okay, and I have done some CBM, that is coal bed methane, and coal gasification process. These some related things I have done during my dissertation work. Okay, so don't worry, if we'll just cover those things in not great detail, but whatever the important things are there, then I will be just covering those things. Okay, एंड हियर इसमें हम क्या पढ़ेंगे, गोल्ड डिपॉजिट्स, प्रेसियस में गोल्ड पढ़ेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. गोल्ड में IOCG टाइप ऑफ गोल्ड डिपॉजिट, ठीक है, IOCG टाइप गोल्ड डिपॉजिट लिख लो, IOCG टाइप गोल्ड डिपॉजिट, कार्लिन टाइप गोल्ड डिपॉजिट, ठीक है. तो IOCG टाइप गोल्ड डिपॉजिट अभी यहाँ पर हमारा भूकिया रीजन में एक मिल रहा है, ठीक है, ये राजस्थान में है, दैट इज नियर टू दिस लेड जिंक डिपॉजिट. ओके, झुंझुन एरिया उसके पास है शायद, ठीक है. तो IOCG, that people are telling that this to be IOCG type, but that is not typical और characteristic IOCG type deposit. ओके, गोल्ड के बारे में पढ़ेंगे, गोल्ड इज important. ओके,
देन उसके बाद यहाँ पे आयरन पढ़ेंगे, मैंगनीज इज इम्पोर्टेंट। जितना जीएसआई के सिलेबस में है, अभी हम दिखाते हैं जीएसआई के सिलेबस में कितना है। यहाँ पर देख लो, यहाँ मैग्मेटिक एंड पेग्माटिटिक डिपॉजिट में वी विल रीड क्रोमाइट, टिटानियम मैग्नेटाइट, डायमंड, कॉपर निकल सल्फाइड, ओके, पीजीई, आरईई, माइका एंड आरएम। आरएम मीन्स रेयर मेटल, okay, rare metal. And this REE, PGE and rare metal, these are important for your netgate GSI also, that's no problem. This is also important for BARC. In BARC BARC interview they used to ask questions from these, okay, like they will ask where we can get this rare metal deposits, okay, and just tell me the name of the minerals who contain the REE, whether it is LRE or HRE, ठीक है, and name some minerals which are containing the PGE mineralization. माइका बेल्ट कहाँ पर है, माइका का इंपॉर्टेंस क्या है, why you are just studying lot more about this pegmatites, okay, टोरमालिन कहाँ मिलता है, तो ये सब चीज़ बार्क में पूछ लेते हैं, PGE एंड REE, एंड हाउ यू आर जस्ट डिफरेंशिएटिंग HFAC, हाई फील्ड स्ट्रेंथ एलिमेंट, LILE, LILE, large ion lithophile element, okay, what is different, what is the concept of compatibility, incompatibility, okay, mineral structure में जो LILE है एंड HFSE है, ठीक है, large ion lithophile element, this is your large ion lithophile element, okay, एंड ये तुम्हारा HFAC, दिस इज हाई फील्ड स्ट्रेंथ एलिमेंट, हाई फील्ड स्ट्रेंथ एलिमेंट, ओके। तो ये दोनों क्या है, बेसिकली ये दोनों क्या है, दीज आर इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स, इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स। जब जियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बार्क से यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और हाइड्रोथर्मल में हम देखेंगे पोर्फिरी, कॉपर, मोलिब्डेनम, ग्रेजन टाइप, SN-Ws, टिन टंगस्टन डिपॉजिट्स, कार्न डिपॉजिट्स देखेंगे, एंडोस्कार्न, एक्सोस्कार्न क्या है, VMS, सेडेक्स, ओरोजेनिक गोल्ड, ठीक है। देन सेडिमेंट्री में आयरन, मैंगनीज, फॉस्फोराइट, मैंगनीज नोड्यूल्स कहाँ पर आता है, सी फ्लोर में मैंगनीज नोड्यूल एक्सप्लोरेशन इज लाइक दिस इज एमर्जिंग फील्ड। देन प्लासर, सेडिमेंट्री में प्लासर डिपॉजिट्स, प्लासर गोल्ड, प्लासर डायमंड, प्लासर प्लैटिनम, ओके। एंड सुपरजिन डिपॉजिट्स, आइदर सुपरजिन और देखो अभी तुम्हारा जैसे कि और मेटामॉर्फिक में तुम्हारा मैंगनीज एंड ग्राफाइट, दीज आर द सिलेबस, ओके, दीज आर द मिनरल डिपॉजिट्स और इकोनॉमिक डिपॉजिट्स व्हिच आर इन GSI सिलेबस, ओके, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ यू नो GSI सिलेबस। तो इन चीज़ों को हम बहुत ही ज़्यादा फोकस करेंगे, ओके। एंड दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। And sedimentary hydrothermal and sedimentary hydrothermal they have just divided into two. In sedimentary hydrothermal हम पढ़ेंगे MBT या मिसिसिपी वैली टाइप, सेडेक्स, सेडिमेंटरी एक्सैलेटिव, कुइपर्स चिपर, रेड बेड कॉपर डिपॉजिट्स, ओके, देखेंगे क्या है। हाइड्रोथर्मल में तुम्हारा पोर्फिरी कॉपर डिपॉजिट, ग्रेजन टाइप डिपॉजिट्स, कैर्न डिपॉजिट, एपिथर्मल डिपॉजिट्स, VMS, वोल्केनोजेनिक मासिव सल्फाइड, ओरोजेनिक गोल्ड डिपॉजिट वेयर विल जस्ट सी द सल्फिडेशन कॉन्सेप्ट। देन IOCG गोल्ड डिपॉजिट्स, यहाँ पर गोल्ड आयरन, ये इसका फुल फॉर्म में आयरन ऑक्साइड कपर गोल्ड। IOCG का फुल फॉर्म क्या है, ये तुम्हारा IOCG है, IOCG का फुल फॉर्म है आयरन ऑक्साइड कपर गोल्ड। तो यहाँ पे सिर्फ गोल्ड नहीं मिलता है, कपर भी मिलता है, आयरन ऑक्साइड भी मिलता है। आयरन ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ मे बी हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, कुछ फॉर्म होगा, ठीक है। IOCG डिपॉजिट्स उसको बोलते हैं। दिस इज अ वेरी न्यू टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, साइंटिस्ट नॉट जियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट दे हैव जस्ट डिफाइंड, ओके। तो हम कहाँ थे, यहाँ थे। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ पढ़ना है। और यहाँ पे मैंगनीज पढ़ेंगे, क्रोमियम इज इम्पोर्टेंट, वैनेडियम थोड़ा देख लेंगे क्योंकि उड़ीसा में, ठीक है, दिस वैनेडियम उड़ीसा में कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है। जहाँ पर भी मैग्मेटिक एक्टिविटीज़ है, इट इज टिटानियम एंड वैनेडियम, देखेंगे कि टिटानियम एंड वैनेडियम मैग्मेटिक एफिनिटी क्या होता है, ठीक है। अभी एक मिनरल स्ट्रक्चर के अंदर कैसे घुसते हैं, हाउ दिस सब्सटीट्यूशन और दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस दे जस्ट हैपेंस, ओके। टंगस्टन इज इंपॉर्टेंट, निकेल इंपॉर्टेंट, कोबाल्ट, टिटानियम, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, फेरस एंड एलाइड मिनरल्स। यहाँ पे सिर्फ कॉपर, लेड, जिंक, टीन इतना पढ़ेंगे, कॉपर, लेड, जिंक, टीन, ठीक है। इसमें यूरानियम थोरियम पूरा पढ़ेंगे, यूरानियम थोरियम प्लस ऑफ RM रेयर मेटल, और सब पढ़ेंगे।
और यहाँ पे लिथियम मैग्नीशियम यहाँ पे सिर्फ एल्यूमिनियम पढ़ेंगे। ओके, एल्यूमिनियम पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा बॉक्साइट का ओर है। ओके, बॉक्साइट का और एल्यूमिनियम है। रेयर मेटल में कुछ नहीं पढ़ेंगे, REE को पढ़ेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मिनरल फ्यूल में कोल, हमारा ऑयल, नेचुरल गैस, इसको पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। देन इसमें पढ़ेंगे हम माइका पढ़ेंगे, माइका इज़ इम्पोर्टेंट, माइका वेल्ड्स हम देखेंगे। उसके बाद बाराइट, एस्बेस्टोस, ये सब छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर हम ग्रानाइट पढ़ेंगे, मार्बल पढ़ेंगे। ग्रानाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ग्रानाइट मतलब भी में कितना, V⁻15 इंपॉर्टेंट है, IP इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, V⁻15 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रेनाइट में देखोगे S टाइप है, I टाइप है, ग्रेनाइट में वाटर कंटेंट कितना है। तो अगर I टाइप ग्रेनाइट कैसा, मतलब कौन सा मिनरल डिपॉजिट उसके अंदर होता है, S टाइप में क्या होता है। ठीक है, दिस ग्रेनाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन मेनी केसेस इन स्ट्रैटिग्राफी ऑल्सो विल बी सीइंग दैट सो मेनी टाइप्स ऑफ ग्रेनाइट, बाल्दा ग्रेनाइट। ठीक है, और तुम्हारा बहुत सारा ग्रेनाइट्स हैं, तुम्हारा प्री कैम्ब्रियन में भी बहुत सारे ग्रेनाइट्स हैं। ठीक है, उसको हम देखेंगे। मार्बल, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, और इसको सब छोड़ दो। क्वार्जाइट सैंडस्टोन भी इम्पोर्टेंट है, और छोड़ दो जेमस्टोन। यहाँ पर डायमंड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डायमंड का फॉर्मिंग प्रोसेस ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे तुम्हारा ग्राफाइट है, सिलिमानाइट है। सिलिमानाइट, सिलिमानाइट ये तुम्हारा एक मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, ये सॉरी मेटामॉर्फिक मिनरल है, सॉरी मेटामॉर्फिक मिनरल है। अंडालुसाइड, सिलिमानाइट, कैनाइट सब जानते हो। ठीक है, दीज आर ऑल पॉलीमॉर्फ्स। तो अंडालुसाइड, सिलिमानाइट एंड कियानाइट, इसका हम बहुत सारा इंप्लीकेशंस देखेंगे, अभी देखेंगे मेटामॉर्फिक में क्या क्या इंप्लीकेशंस है। ठीक है, एंड दिस क्वार्जाइट, जिरकॉन इज इम्पोर्टेंट। जिरकॉन के रिलेटेड हम कुछ चीज़ बता देंगे, क्योंकि जिरकॉन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस आ जाता है। जैसे कि अभी UPSC सॉरी GSI का जो 20 पोस्ट के लिए जो 25 रुपये वाला एक आया था, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा गार्नेट यहाँ पर पढ़ना है, गार्नेट, प्रोफेसर टीके विश्वाल, गार्नेट पढ़ना है। ठीक है, देन यहाँ पे सैंडस्टोन पढ़ना है, क्वार्जाइट एंड अब्राजिव पढ़ना है। अब्राजिव से क्वेश्चन आता है गेट में, मोर फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आता है अब्राजिव से। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है। फेल्डस्पार, डोलोमाइट, फेल्डस्पार के बारे में कुछ जैसे मिनरल ग्रुप में पढ़ लेंगे, और कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे फर्टिलाइज़र में फॉस्फेट, फॉस्फेट एंड जिप्सम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, फॉस्फेट एंड जिप्सम, क्योंकि फॉस्फोराइड डिपॉजिट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉस्फोराइड डिपॉजिट्स, फॉस्फोराइड डिपॉजिट्स इन द दिस हिमालयन रीजन में फॉस्फोराइड डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं। GSI में तो ये अभी क्वेश्चन ही पूछ दिया था, मसूरी फॉस्फोराइड डिपॉजिट के बारे में लिखो पर्टिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ नहीं है, इतना ही बस पढ़ना है। ठीक है, एंड टुमारो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और जियोलॉजी का कुछ टर्मिनोलॉजी है, और कैसे बोलते हैं, सिनजेनेटिक, एपिजेनेटिक, हाइपोजिन, सुपरजिन, मेटालोजेनी क्या है, मेटालोटेक्ट। मेटालोटेक्ट ये तुम्हारा इसमें आया था यूपीएससी जियोलॉजिस्ट एग्ज़ाम में, जियोलॉजिस्ट एग्ज़ाम में एक आया था, मेटालोटेक्ट क्या होता है। ठीक है, तुम्हारा MSQ था, MSQ, मेटालोजेनिक एपोक क्या है, इसको हम थोड़ा देखेंगे। एंड वी विल सी व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, ओके, एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ओर डिपॉजिट्स दिस रॉक्स होस्ट, okay, and their correlation. And after that we will just try to just see the ore deposits or the economic mineral deposits with reference to different tectonic setting. Okay, different tectonic setting, okay, and different tectonic setting, different tectonic setting में तुम्हारा और एसोसिएशन कैसा है। ओके, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। सो अप टू हियर एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क। यहाँ पे हम आज का क्लास ख़त्म करते हैं। मैं थोड़ा तुमको दिखा देता हूँ कि हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे। ये वाला नेक्स्ट टुमारो दिस टेबल, होल टेबल विल बी समराइज्ड, ओके, एंड दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। टुमारो ने डे आफ्टर टुमारो, टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द क्रिस्टलोग्राफी, ओके। एंड यहाँ पे हम तुमको दिखाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, okay, and the evolution of your crust and mantle, and with respect to that mineralization हम देखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद ये तुम्हारा क्रैटन मोबाइल बेल्ट एंड तुम्हारा सेडिमेंटरी डिपॉजिट्स, वाट आर द बेसिन्स, ओके। देन ईच एंड इंडिविजुअल टाइम पीरियड में कुछ कुछ जो भी इवोल्यूशन हुआ है। देन फर्दर हम देखेंगे इकोनॉमिक डिपॉजिट्स। अभी आयरन का डिपॉजिट किन किन स्टेट्स में है,
ओके देखो इस ये वाला स्टेट्स में है, इस स्टेट में पर्टिकुलर एरिया को हम देखेंगे, पर्टिकुलर एरिया को हम मार्क करेंगे एंड देन वी विल जस्ट गो इंडिविजुअली। ओके यहाँ पर एक आयरन डिपॉजिट है तो क्यों है, क्यों इन द सेंस व्हाट इज द और व्हाट आर द ore forming processes or ore forming processes responsible for this deposition, responsible for this deposition, इसको हम देखेंगे। देखो ये हम खुद बनाए हैं, ठीक है, आयरन का, ये आयरन का है, अभी देखो लेड जिंक का है, तो कौन कौन से स्टेट्स में, और उसके बाद हम देखेंगे कि सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में क्यों है, वाई दे आर लाइक स्प्रेड इज अप टू दिस पर्टिकुलर स्टेट्स, ठीक है, और इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं कि नहीं, तो इसको हम देखेंगे। उसके बाद देखो मैंगनीज है, क्रोमियम है, गोल्ड है, कपर है, कोबाल्ट है, मोलिब्डेनम, निकेल, टंगस्टेन, एसएन इज योर टिन, टिन एंड दिस एसएन, आई लव दिस एसएन, ओके टिन, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा लाइक इसका इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। ये जो एसएन है दिस इज रिलेटेड टू योर ग्रेनाइट्स में आता है, ओके फेल्सिक रॉक में एसएन आता है। एसएन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि एसएन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ टंगस्टेन, दिस इज डब्ल्यू, दिस इज योर टंगस्टेन, ओके। सो इतना ही है, तो हमको इसको डिटेल में पूरा सब ईच एंड इंडिविजुअल थिंग को आई विल ट्राई टू कवर अप, ओके। यहाँ पर थोड़ा लाइक एलिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है उसको थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पे ये तो बिग बैंग थ्योरी हम पढ़े हैं पहले से, बट आई विल जस्ट समराइज अगेन, ओके। सो अप टू हियर इन डिफरेंट टेक्टोनिक सेटिंग, यहाँ पर देखो तुम्हारा डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड स्ट्राइक स्लिप, और क्या क्या हाइब्रिड क्या होता है, ट्रांसप्रेशन हो सकता है, ट्रांसटेंशन हो सकता है। तो ट्रांसटेंशन में तुम्हारा पुल अप एडवेशन होगा, ट्रांसप्रेशन में प्रेशर रिज होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन गेट में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आई विल जस्ट ट्राई टू जस्ट टेल यू दिस को रिलेटेड थिंग्स, ओके। So guys, thank you, and please do watch the video, and if you just get pleased, then you can join our group also, no problem. Description में link दे देंगे, okay guys, thank you and have a good day.